Hello everyone, I am back with another video. In this video, I am going to share some English conversation sentences between two sister English conversation practice. So guys, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Okay, so without any delay, let's begin in English conversation sentences. I am feeling hungry. Get me something to eat. Kassis, I am feeling hungry. Get me something to eat. D. What would you like to eat? D. What would you like to eat? Get me whatever you like. Get me whatever you like, please. Okay, D. I just get it. Okay, D. I just get it. Kassis, listen to me. Do you have money? Kassis, listen to me. Do you have money? Yes, I have a lot of money. Yes, I have a lot of money. Kassis, there is no place for tension in your presence. Kassis, there is no place for tension in your presence. D. I will never let anything happen to you. I know, that's why I love you too much. I know, that's why I love you too much. Kassis, may I ask you something? Kassis, may I ask you something? You are looking upset for the last few days. You are looking upset for the last few days. No, it's not so, Di. No, it's not so, Di. Kassis, I know you sense your worth. Kassis, I know you sense your worth. Kassis, can't hide anything from me. Kassis, can't hide anything from me. Now tell me quickly, what's going on in your mind? Now tell me quickly, what's going on in your mind? Kassis, please tell me. D. My friend has a fight with me. D. My friend has a fight with me. Well, this was so annoying. Well, this was so annoying, Kassis. Don't worry about it. Are you there yet? Are you there yet? I just got her. This survey, I'm almost there. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. That's no problem. I just went to tell you I'm inside. Oh, where are you? Where are you? On the second floor. On the second floor. Should I come to the second floor? Or do I want to come to the first floor? Please tell me. Come upstairs. Come upstairs. What? Oh, can you hear me okay? I said come to the second floor. Okay, what are you doing there? Okay, what are you doing there? Just looking at some books on how to learn English. Okay. When is your birthday? When is your birthday? Birthday is on first day of this month. My birthday is on first day of this month. How old are you now? How old are you now? I am 15 years old now. I am 15 years old now. Are you planning a birthday party? Are you planning a birthday party? No. Okay, thank you. Thank you so much. Bye-bye. तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है। जैसे आपके घर मेहमान आए हुए हैं और आपको इस तरह से पूछना है आपको खाना कैसा लग रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं घरों में, अक्सर किसी न किसी के साथ हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है, अच्छे से याद कर लीजिए, आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड,
आपको खाना कैसा लग रहा है। ओके, अब इसकी वजह से आपको ये कहना हो यह बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया। जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ डू यू लाइक द फूड, और फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स टेस्ट रियली ग्रेट, इट टेस्ट रियली ग्रेट, डिड यू कुक इट, डिड यू कुक इट, यह क्या आपने पकाया है। दोबारा से देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो यह बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट टेस्ट रियली ग्रेट, डिड यू कुक इट, डिड यू कुक इट, क्या आपने ये पकाया। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से दोनों सेंटेंसेस याद कर लिए। आपको खाना कैसा लग रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड, हाउ डू यू लाइक द फूड, यह बहुत स्वादिष्ट है, इट टेस्ट रियली ग्रेट, क्या आपने ये पकाया, डिड यू कुक इट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लिया है मैंने, जैसे आपको ये कहना है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है किसी से मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, तो अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ मे आई हेल्प यू, और फिर आपको रिप्लाई इस तरह से देना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। अब जिसका भी आपको आदेश देना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। अगर आपको इस तरह से ही कहना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहता हूँ या फिर देना चाहती हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपसे किसी ने बोला आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, फिर आपको ये कहना हो बे किस लिए, बे किस लिए, या फिर बे किसके लिए। अगर इस तरह से कहना हो बे किसके लिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर दे फॉर, हु आर दे फॉर, बे किसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे किसी ने ये बोला हु आर दे फॉर, फिर आपको ये कहना हो बे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। यानी जो फूल है तो आपको इस तरह से बोला हो बे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई वाइफ, हर नेम इज समंथा, दे आर फॉर माई वाइफ, हर नेम इज समंथा, बे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। अगर आपको ये कहना हो बे किस लिए या फिर बे किसके लिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर दे फॉर। आपको फिर ये कहना हो बे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई वाइफ, हर नेम इज समंथा। अब जो भी आपकी पत्नी का नेम है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब जैसे आपको ये कहना हो बे मेरी माँ के लिए, सिर्फ आपको इतना कहना है वे मेरी माँ के लिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई मॉम। क्लियर, जिसके लिए भी आपको बताना है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो।
अब जैसे आपको ये कहना हो वे मेरी सिस्टर के लिए, उसका नाम कशिश है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई सिस्टर, हर नेम इज कशिश। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अब जिसके लिए भी आपको लेना हो उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है आप किस किस्म के फूल चाहते हैं, यानी आप किस प्रकार के, किस किस्म के फूल चाहते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक, आप किस किस्म के, किस प्रकार के फूल चाहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक, आप किस किस्म के फूल चाहते हैं। अब यहाँ पर फूल लिया है, अब जिसको भी आपको बताना है उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती है। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो, आपको कहना है मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। फिर आपको ये कहना हो क्या आपको सुझाव दे सकती है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू रिकमेंड समथिंग। कैन यू रिकमेंड समथिंग, क्या आपको सुझाव दे सकती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कैन यू रिकमेंड समथिंग। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, कैन यू रिकमेंड समथिंग। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है ठीक है, क्या कारण है कि आप उनको फूल भेज रहे हैं। पहले आपको ये कहना है ठीक है, फिर आपको पूछना है क्या कारण है, रीज़न क्या है कि आप उनको फूल भेज रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके। ओके, ठीक है। फिर आपको कहना हो क्या कारण है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द रीज़न, या फिर व्हाट इज़ द रीज़न। व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स। यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स, कि आप उनको फूल भेज रहे हैं। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो ठीक है, क्या कारण कि आप उनको फूल भेज रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके, व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स। अब जो भी भेज रही हो आप, उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। क्लियर। अगर आपको ये कहना है ठीक है, क्या कारण है कि आप उनको बुक भेज रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके, व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर बुक्स, यानी आप उनको किताबें भेज रहे हैं, क्या कारण है। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस तरह से इसको इंग्लिश में कहोगे ओके, व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर बुक्स। अगर पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर आप मनी ऐड कर सकती हो। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ हर बर्थडे, यानी टुडे इज़ हर बर्थडे एंड शी टोल्ड मी।
एंड सी टोल्ड मी, यानी उसने मुझसे कहा, फिर आपको कहना है कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे शी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स, यानी टुडेज हर बर्थडे एंड शी टोल्ड मी शी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के फूल पसंद करती हैं। क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के, किस प्रकार के फूल पसंद करती हैं। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स। क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के फूल पसंद करती हैं। एक बार दोबारा से देखिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स। अब जैसे आपको कहना है मैं ठीक से नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए लेकिन अब याद नहीं कर सकता। इस तरह से आपको अगर रिप्लाई देना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं ठीक से नहीं जानता, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट श्योर। आई नो आई शुड नो डैट बट आई कैंट रिमेंबर राइट नाउ, यानी मैं ठीक से नहीं जानता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम नॉट श्योर। मैं जानता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, आई नो आई शुड नो डैट। फिर आपको कहना है लेकिन मैं अब याद नहीं कर सकता। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई कैंट रिमेंबर राइट नाउ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वे आपकी पत्नी के लिए है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। वे आपकी पत्नी के लिए है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेल देयर फॉर योर वाइफ सो आई थिंक यू शुड गिव हर रोजेस, रोज। ठीक है, गुलाबें देना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना है और तब आप यहाँ पर ये गुलाब के फूल दिए गए। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो वे आपकी पत्नी के लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेल देयर फॉर योर वाइफ, या फिर दे आर फॉर योर वाइफ सो आई थिंक यू शुड गिव हर रोज। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपको ये कहना है गुलाबें ठीक रहेंगी। आपको इस तरह से रिप्लाई देना है गुलाबें ठीक रहेंगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रोज से विल बी फाइन। रोज से विल बी फाइन, गुलाबें ठीक रहेंगी। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रोज से विल बी फाइन। और फिर जैसे फिर आपको ये कहना है कौन सा रंग, कौन सा रंग। आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट कलर, व्हाट कलर, कौन सा रंग। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट कलर, कौन सा रंग। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, यानी लाल रंग अच्छा रहेगा। तो जब भी आपको इस तरह से कहना है मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड वुड बी नाइस। अगर आपको ये कहना हो मुझे लगता है कि लाल कलर यानी लाल रंग अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड कलर वुड बी फाइन, या फिर रेड कलर वुड बी नाइस। ओके, तो जब भी कहना हो मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड वुड बी नाइस। आई थिंक रेड वुड बी नाइस, मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा।
क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुँचाना चाहिए? क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुँचाना चाहिए? अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड वी डिलीवर देम? डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड बी डिलीवर देम? क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुंचाना चाहिए, हमें उनको डिलीवर करना चाहिए? तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड बी डिलीवर देम? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती हैं? क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती है? अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कैन यू डिलीवर देम प्लीज? कैन यू डिलीवर देम प्लीज? क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती है? अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको यहाँ पर फूल दिया, जो भी आपको पहुँचाना है, और अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है क्या आप उनको ज़रा पहुँचा सकती है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कैन यू डिलीवर देम प्लीज़? ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब जैसे आपको ये कहना है पता क्या है, जैसे आपसे किसी ने बोला कैन यू डिलीवर देम प्लीज़, आपको फिर ये कहना है पता क्या है, एड्रेस क्या है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, व्हाट्स द एड्रेस? व्हाट्स द एड्रेस? एड्रेस क्या है, पता क्या है, या फिर इस तरह से इसको आप बोल सकते हो, व्हाट इज द एड्रेस? व्हाट इज द एड्रेस? पता क्या है, एड्रेस क्या है? क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको ये कहना हो, मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती है? अब फटाफट से पहले आप इसको बताइए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती है? तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट नो। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, कैन यू रिकमेंड समथिंग? क्या आपको सुझाव दे सकती है? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको इस तरह से कहना हो, आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको इस तरह से कहना हो, आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। अब फटाफट से पहले आप बताइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ हर बर्थडे, या फिर टुडे इज़ हर बर्थडे, आज उसका जन्मदिन है। अगर देखिए आपको सिर्फ इतना कहना हो आज उसका जन्मदिन है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ हर बर्थडे, टुडे इज़ हर बर्थडे, आज उसका जन्मदिन है। फिर आपको ये कहना और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एंड सी टोल्ड मी सी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स, टुडे इज़ हर बर्थडे एंड सी टोल्ड मी सी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स, आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है, अगर आपको ये कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है, अब फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और मैंने आपको कई बार अभी आपको बताया इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी गाइस आपको इस तरह से कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है, जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू लाइक द फूड। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड, हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। और जैसे आपको ये कहना है यह बहुत स्वादिष्ट है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट टेस्ट रियली ग्रेट, इट टेस्ट रियली ग्रेट, ये बहुत स्वादिष्ट है। और फिर आपको अगर ये कहना है क्या आपने ये पकाया, क्या आपने ये पकाया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डिड यू कुक इट, डिड यू कुक इट, क्या आपने ये पकाया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।